پلوامس مز آز تمہ سات فوجس تو ملٹنٹن درمیان جڑپ سپزم یل فورسز اہلکاروں طرف علاقہ گیر کرنا آو ون فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکاروں طرف اخ مصدق اطلاع ملنس پہ رز دوران بنڈزو پلوامہ گیر کرنا آمت یتھ دوران علاقس مز موجود ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان گولین ہند تبادلہ سپد یدوے گولین ہند تبادلہ آز دوپہر اند ووت تت گولین ہندس تبادلس مز جیش محمد تنظیم ست وابستہ زٕ مقامی ملٹنٹ تو اخ سی آر پی ایف اہلکار فوت سپدمت ملٹنٹن ہز شناخت یہ اویس احمد بٹ مول چھترگام شوپیان تو اعجاز احمد گنائی رام نگری شوپیان سن کرنا آئی تت فورسز اہلکاروں طرف فوت سپدمتن ملٹنٹن نش ہتھیار برآمد کرنک دعو کرنا آمت شمالی کشیر ہندین لولاب کن جنگلن من آز تمہ سات فوجس تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادلہ سپدمت یل فورسز اہلکاروں طرف لولاب کن جنگلن من سرچ آپریشن شروع کرنا آو ون فوج تو ایس او جی اہلکاروں طرف رز دوران لولاب کن جنگلن ہند محاصرہ کرنا آمت یتھ دوران آز صبح علاقس مز فوجس تو ملٹنٹن درمیان مختصر گولین ہند تبادلہ تہ سپد یل زن آخری اطلاع واتنس تام علاقس مز تلاشی کاروی جاری اس دن میں لگ بھگ 2 درجن آپریشن چلتے ہیں اور 2 درجن آپریشن میں سے کبھی کبھار 1 کبھی 2 کلک کرتے ہیں، کبھی کوئی بھی نہیں کرتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جو بھی اطلاع ہمیں ٹیررسٹ کے بارے میں آتی ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے بارے میں آتی ہے، موومنٹ کے بارے میں آتی ہے، ہم اس پہ ایکٹ کریں۔ دن رات فورسز مل کر کے کام کر رہی ہیں اور ہر اطلاع کے اوپر آپریشن لانچ کرتی ہیں۔ آج لولاب میں آپریشن شروع ہوا ہے، وہاں بھی کوئی اطلاع تھی کہ وہاں کوئی ہائیڈ آؤٹ ہے جس کے اندر ملٹنٹس کی پریزنس ہے۔ ایک دن پہلے کاپرن میں ملٹنٹس کی پریزنس تھی، وہاں آپریشن لانچ کیا گیا تھا۔ انفارچونیٹلی وی مس دیٹ ٹارگیٹ۔ آج بھی ملنگام میں آپریشن ایک اور چل رہا ہے، ابھی بھی آپریشن جاری ہے، جس کے لیے ہمیں ابھی اطلاع کا انتظار ہے کہ فردر اس میں کیا ڈیٹیل آتی ہے، کامیابی ہوتی نہیں ہوتی۔ تو جیسا میں کہہ رہا ہوں 2 درجن سے زیادہ آپریشن ایک دن میں لانچ کرتی ہیں فورسز مل کے، اور اسی کی وجہ ہے اتنی محنت کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپریشن ہمارا اچھی اطلاع پر جو بیسڈ ہوتا ہے وہ کامیاب آپریشن بن نکلتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی شاید جو پریشر ان کے اوپر بنا ہوا تھا ہارڈ کور ملیٹنٹس کا، جو جیش محمد کے اور باقی جو پرانے جو ملیٹنٹ تھے، ان کی وجہ سے خوف کی فضا رہتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی دیکھی جاتی ہے کہ جہاں نیا لڑکا ملٹنسی میں شامل ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک پرانا لڑکا چل رہا ہوتا ہے جس کا دباؤ نئے والے لڑکے کے اوپر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اندر کی سچویشن ایسی رہتی ہو کہ پرانے والا نئے والے کے اوپر دباؤ ڈال کے رکھتا ہو، اس کو سرنڈر نہ کرنے دیتا ہو، مگر اس کے باوجود کورونا وائرس برو کن ین پتہ یہ سعودی حکومت طرف گوڑے عمرہ ادا کرنس پہ پابندی عائد کرنا آئی تت سعودی حکومت طرف یم وری حج ادا کرنس پہ ٹھاک لاگنس حوالہ حکم نامہ جاری کرنا آمت یل زن حکم نامس مز ون آمت یم لوک مقامی یا غیر مقامی سعودی عربس مز موجود آسن تمن لوکن یہ حج ادا کرنک اجازت دن یپر یہ فیصلہ برو کن ین پتہ بھارتی حکومت طرف تہ حجس حوالہ حکم نامہ جاری کرنا آمت یتھ دوران ون آو لوکن ہز حفاظت یقینی بناؤن تو موجود صورتحال نظر تل تھوت مرکزی سرکار طرف فیصلہ نن آمت یم وری یہ کنس تہ بھارتی شہریس حجس پہ گھنک اجازت دن تاہم ون آمت یمو لوکو طرف حج باپت فارم جمع کرمت تمن لوکن ین پونس واپس کرنے یہ کت باون لائق عالمی وبا نظر تل تھوت یہ سعودی حکومت طرف نن آمت فیصلہ ست کئیہن حلقن مز مایوسی تہ سپزمت تاہم تواریخ گواہ پت کال تمہ سات حج منسوخ کرنا آمت یل امت مسلمہ پہ کان آفت طاری سپز 930 ہجریس مز تمہ سات حج منسوخ کرنا آمت یل قرمتین ٹرائب یعنی بحرین طرف مکہ معظمس پہ حملہ کرت حجر اسود تہ نناو تو 20 وری سپدن پتہ حجر اسود واپس ان آو تمہ سات صورتحال نظر تل تھوت حج منسوخ کرنا آمت یل زن 1830 پہ 1930 تام تمہ سات ال پل 27 پھر حج منسوخ کرنا آو یل پور دنیا پہ حیض بیمار نال ولمت تو یت پٹ پریت وز حالاتن ہند جائزہ ہیت وقتی حکومتوں طرف حج منسوخ کرنک تہ فیصلہ نن آمت۔ کل رات میں سعودی عرب سرکار کے حج اور عمرہ منسٹر ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر محمد صالح
का फ़ोन आया था। उन्होंने पूरी दुनिया में जो कोरोना पैंडेमिक है, जो कोरोना की महामारी है, उसके बारे में चर्चा की और उससे प्रभावित जहां पूरी दुनिया है वहीं पर सऊदी अरब में भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की। और उन्होंने कहा है कि हज 2020 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को इस बार हज के लिए न भेजा जाए। सऊदी अरब सरकार के इस तमाम बड़ी जो कोरोना की महामारी है उसकी चुनौतियों को देखते हुए जो सऊदी अरब की सरकार का फैसला है, उस फैसले का सम्मान करते हुए हमने फैसला किया है कि इस वर्ष हज 2020 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को सऊदी अरब हज यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। अब तक लगभग 2,30,000 से ज़्यादा भारतीय मुसलमानों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया है और आज ही से, बल्कि जिस समय हम आपको ये सूचना दे रहे हैं उसी समय से सभी जो 2,30,000 आवेदन जिन लोगों ने किया है उनका पैसा बिना किसी कटौती के, क्योंकि पहले जो प्रक्रिया होती थी कि अगर जो लोग कैंसिलेशन था तो कैंसिलेशन चार्जेस होते थे, बिना किसी कटौती के सभी लोगों को डीबीटी के जरिए ऑनलाइन पैसे वापस कर। मौजूदा सूरत हाल दौरान ये महकमा सेहत तो महकमा सत वाबस्त अमलस पे कामि हुंद बोझ ज्यादा वुचन तब कईयाव इलाकों पे महकम गैर संजीदगी हवाल ते खबर मौसूल सपदन। सुंबल बंडपुरिस मज कायम हस्पताल इंतजामिया तो अमलस पे ये इल्जाम आयद करान वन आव जे अमल तरफ छुन अकिस गोबखोर जन हस्पताल मज दाखिल सपदन इजाजत दिन आमुत यम किन अमिस जन हिंज डिलीवरी हस्पताल इमारत ब्रोह कन सपज तब महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे मामलस हवाल टीम ते तश्कील दिन आमज युद्ध जन असल हकैक लूकन ब्रोह कन अन्न यपर मुख्तलिफ हल्कों पे अमि वाक़ मजम्मत करान मंग करना आमद जे हस्पताल मज तैनात अमलस खिलाफ गई कार्रवाई अमल मज अन्न युद्ध जन ब्रोह कुन ये वाक़ पेश सुबह सब्जास पे कुर्सी पे दिवान क्रैक अमिस मज गो कून नाक ऑन सुपाते थे पता दी छठ कान मजन अमिस बाज अमिस माज डोर ये हालत उन सह बाज न्यून अंदर दितन यतन क्रैक अद आय हम दवा वाल आय यमो लगो तमिस त्रुपाल पे अभी तक हमने जो प्राइमा फेशी देखा है इसमें कोई हेल्थ डिपार्टमेंट की चाहे डॉक्टर या पैरामेडिकल कोई कोताही नहीं बरी हुई है। फिर भी हमने डॉक्टर एजाज साहब जो बीएमओ हज ने उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है, उस कमेटी वो जांच करेगी, देखेगी अगर कोई भी हेल्थ वर्कर इसमें मुलवस पाया गया, कोई नेग्लिजेंस हुई होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर के शीरन बाग इलाकस मज आज पैरामेडिकल तो नर्सिंग स्टाफ तरफ एहतजाज करना आमुत या दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम मसले अंजरावनिच मंग करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम महकमा सेहत मज पन फरज चुक सान अंजाम दिवान ताहम इंतजामिया तरफ तिहद मसले अंजरावनस हवाल कह संजीदा कदम तुलना आमुत यमकिन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाजी मुलाजिमों तरफ मंग करना आमुत तिहद मसले अंजरावनस हवाल गसन कदम तुलने युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिंग पे। जो इस वक्त कोविड चल रहा है, कोविड-19, इसमें भी हमारे मुलाजमीन, एकेडमिक मुलाजमीन, परमानेंट मुलाजमीन के शाना बशाना काम कर रहे हैं, मगर सरकार इनके साथ नाइंसाफी कर रही है। हम सरकार को आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि अगर हमारे मुलाजमीन फ्रंट लाइन पर काम करें, कम से कम इनका उसका कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर हमारे मुलाजमीन है, एकेडमिक अरेंजमेंट मुलाजमीन, अगर कोई पॉजिटिव होता है, बहुत से मुलाजमीन हमारे पॉजिटिव हो गए, अगर वो पॉजिटिव हो जाते हैं उनको कोई जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। तो अगर कोई मुलाजिम पॉजिटिव होता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो हमारे घर, जो उनके घर वाले हैं, उनका फ्यूचर भी खत्म, उनका कोई एसआरओ नहीं। आपकी वजह से हम सरकार को बोलना चाहिए, एक तो एसआरओ 43 इनको दिया जाए, दूसरा इनकी जो नौकरियां जो पिछले 10-12 सालों से काम कर रहे हैं, इनकी नौकरियों को रेगुलराइज किया जाए, और तीसरा ये जो हमारे एचडीएम मुलाजमीन है उनकी जो श्रीनगर में आज सबक दोष सपदमत वर्क सुपरवाइजरों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत या दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम
इंतजामिया खिलाफ नारबजी करान। एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुद तमो मुख्तलिफ महकमन मज चुकसान पन फरज अंजाम दित, ताहम सबजोश सपदन पत इंतजामिया तरफ तीन मसले अंजाम बाबत कह कदम तुलना आमुद यम तम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुद तीन मसले अंजाम सवाल गसन कदम तुलनी तम मजीद मुश्किल बेहतरीन पे। हम डिमांड कर रहे हैं पिछले कई सालों से कि SRO 520 पे पूरी तरमीम करके 63,000 से ज्यादा कैजुअल मुलाजिमीन की नौकरियों को बाकायदा बनाया जाए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हम डिमांड करते हैं कि इनकी वेजेस को बाकायदा बनाया जाए, उनको 4 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद वेजेस मिल रही है, उनकी जिंदगी अजीरन बन चुकी है, उनका आलयाल जो है कसम परसी की जिंदगी बसर करता है। ये एक समाजी और इंसानी मसला बन चुका है। लिहाजा मरकजी सरकार और यूटी सरकार को इस पे अहम फैसले लेने चाहिए और उनकी नौकरियों को बाकायदा बनाया जाना चाहिए। दूसरा सबसे अहम मसला है जो इंजीनियरिंग विंग्स में, डिफरेंट इंजीनियरिंग विंग्स में जो एम्प्लॉइज, सुपरवाइजर, वर्क सुपरवाइजर काम करते हैं, उनको SRO 59 के बेनिफिट्स जो है वो नहीं दिए जा रहे। उनके केसेस जो है पिछले कई सालों से हमारे AG ऑफिस में अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन उम्मीदवारों तरफ आज अनंतनाग मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल उम्मीदवार इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल नौजवानों तरफ वन आमुद रहबर खेल स्कीम तहत गई भर्ती अमल दोबारा शुरू करनी युद्ध जन यमन नौजवान रोजगार फराहम सपदे। हम अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन की तरफ से यहाँ करेक्ट हुए हैं, असेंबल हुए हैं, क्योंकि हम बेरोज़गार हैं। गवर्नमेंट ने हमें 2017 में हमारे साथ कमिटमेंट किया है, जब उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है रहबर खेल स्कीम, तो उसी टाइम उन्होंने एक ऑर्डर बनाया है कि हम इसमें जो है आपके जो उन्होंने एक डेटा बनाया था 7311 जो अनकवर्ड स्कूल थे, इन सभी को हम फुलफिल करेंगे। बाद में उन्होंने बताया कि विद इन 1 ईयर हम बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट्स हैं हम एडजस्ट करेंगे। हम अब हमारी अपील है गवर्नमेंट से। महकम जंगलात मज काम करने वाले आर्जी तो डेलवेज मुलाजिमों तरफ आज कुलगमस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल आर्जी तो डेलवेज मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारबजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुद मुलाजिम मुख्तलिफ महकमन मज पन फरज पत्म कई काल पे अंजाम दिवान, ताहम इंतजामिया तरफ इन मुलाजिमन मुस्तकिल हवाले कह कदम तुलना आमुद। आज 2 रोज़ा ये जो प्रोटेस्ट है इसका दूसरा दिन है और हम गवर्नमेंट को इस प्रोटेस्ट के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमारी धीराना मांगे जो जम्मू और कश्मीर में आर्जी मुलाजमिन है, उनकी जो धीराना मांगे हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर हमारे जम्मू कश्मीर में लागू करें, और जो हमारे वो पेंडिंग वेजेस है कैजुअल लेबर आर्जी मुलाजिम के जो पेंडिंग वेजेस है वो जल्द अज जल्द वागुजार करें, और जो यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट है वो भी लागू। यपर कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी मज काम करने वाले आर्जी तो डेलवेज मुलाजिमों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम नारबजी करान। यल्दनाथ मौके पर मांग करना आई आर्जी तो डेलवेज मुलाजिमन हिंद मसले अंजाम सवाल गसन कदम तुलने इन युद्ध जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने। इस प्रोटेस्ट का जो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म जो है, हम उसको ये वाज़ेह करना चाहते हैं जो 520 इन्होंने SRO जो बनाया है इसको रिवोक वापस करे, जो SRO 64 और 1994 में जो लागू हुआ था वो इम्प्लीमेंट करे। हमारी यही रिक्वेस्ट है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो हमारे कैजुअल लेबर के जो ऑल जेंट के कैजुअल लेबर है जो 61,000 जो कैजुअल लेबर है इनको वागुजार। सोमू स्टेट त्राल सत वाबस्त ट्रांसपोर्टरों तरफ आज खामोश एहतजाज करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल ड्राइवर इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल ड्राइवरों तरफ वन आमुद मौजूद सूरत हालत दौरान तम मुश्किल मज हन आये, ताहम इंतजामिया तरफ इन ड्राइवरन हिंद मुश्किल दूर करने बापत कह कदम तुलना आमुद। एहतजाज में शामिल ड्राइवरों तरफ मांग करना आमुद ड्राइवरन हिंद मुश्किल दूर करने हवाल गसन संजीद कदम तुलने युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पे। फाइनेंस हमने बैंक से लिया है, सर्टिफिकेट्स मतलब पढ़ लिख के बच्चों ने सर्टिफिकेट्स बाउंड रखे हैं इस बैंक में। बैंक वाले तो इंटरेस्ट मतलब ले रहे हैं, उसमें चालू है, इस वक्त इंस्टॉलमेंट नहीं ले रहे हैं बल्कि की इंटरेस्ट चालू है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे मतलब ये जो 400 गाड़ियाँ यहाँ चल रही है, 400 गाड़ियों के मतलब फैमिली मेम्बर्स
सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए मतलब चूल्हा जलाने के लिए चूल्हा तो बुझ चुका है, इसलिए चूल्हा जलाने के लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी मजबूत कुलगाम के लूकों तरफ आज एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत या दौरान एहतजाज में शामिल लूक नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन्न आमुत युद्ध इलाकस में जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच कायम करने आमुत, ताहम बैंक कामकार बंद करना आमुत, यम आम लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत बैंकस में कामकार बहाल करने हवाले गसन कदम तुलने युद्ध जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर करने। बैंक को खोला जाए, इससे नुकसान है लोगों को। ये तो पूरा इलाका है यहाँ टंगमरग से केबी पोरा तक, ये बहुत बड़ा इलाका है, बैंक के मुतसिल इलाका है। इससे नुकसान है, बैंक को नुकसान है, हमको नुकसान है, लोगों को नुकसान है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि वो फौरन लोगों की डिमांड है कि बैंक को खोला जाए। डोडस में आज महकमा R&BS मज काम करने वाले आर्जी तो कैजुअल मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत, या दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ ये मुस्तकिल हज मांग करना आई, तक तनख्वाह वागुजार करने मांग करना आमुत। मौजूदा इन हालात में जो हमारा सिटी वर्कर, डेली वेजर, नीड बेस्ड, ड्रोन ओनर वगैरह जो है वो इन मुश्किल हालात से गुजर रहा है। आज का प्रोटेस्ट हुकूमत वक्त से मुतालबा करता है कि जितना भी जल्द हो सके इन लोगों के रेगुलराइजेशन पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए। जहाँ तक हमारी स्टेट लेवल की बात करेंगे, स्टेट में से तकरीबन जो तमाम महकमा जात के जो मुलाजमीन हैं वो 70 से 80 हज़ार के करीब हैं। गवर्नमेंट ने जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी निकाली है मतलब फोर्थ क्लास के लिए, हम नहीं बोलते हैं कि मतलब मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले NYCO तरफ आज वर्मलिस में खामोश एहतजाज करना आमुत, या दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल NYCO तरफ वन आमुत यदि तम मुख्तलिफ महकमों में पन फरज अंजाम दिवान, ताहम तिहद मसलन अंजाम हवाले कह कदम तुलना आमुत यमकिन तम मुश्किल मज हन आई। ये जन अत मौके पे इंतजामिया मांग करना आई तिहद मसलन अंजाम हवाले गसन संजीदा कदम तुलने। 2010 से लेकर आज तक, 2010 में जब हम अपॉइंट हुए तो हमारी सैलरी सिर्फ 2500 थी और आज भी हमारी सैलरी सर वही 2500 है। तो सर भला आप मुझे बताएं कि इन 2500 पर हम कैसे गुजारा कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी बसर करें, अपनी फैमिलीज़ की ज़िंदगी बसर कराएं, या सर हमारी इस वक्त जो पोजीशन है, मेजॉरिटी ऑफ NYCs जो है वो सर मैरिड है। मेजॉरिटी ऑफ द NYCs आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, MEds, MPhils, इवन PhD स्कॉलर्स। हम ये डिमांड कर रहे हैं LG इंतजामिया से कि खुदारा आपने जो हमारे लिए एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें हम ये मांगते हैं कि रेगुलराइजेशन ऑफ NYCs विद पैटर्न चेंज एंड सैलरी हाइक। चोडर बरगेमिस मज पतमन दोहन मज कोरोना मुतासर लूकन हंदिस तादाद मज इजाफा सपदमुत, तब इंतजामिया तरफ इलाकस मज मुकम्मल बंदिश आयद करना आमच। या दौरान इलाकस मज फोर्सेस एहलकार हज हुरिमान छक तैनात करने अलावा कईयान जायन पे फोर्सेस एहलकारों तरफ वत कंडदार तार लगित बंद करना आई। ये जन इंतजामिया तरफ लूकन अपील करना आई तम गसन इंतजामिया अथवास करें युद्ध जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनावनी। अब्दुल हादी मुबशर जी पॉजिटिव केस तो अभी पे पे बी वो द्रास द्रा 4 केस बी ये जन बी पुलिस आव बल्कि बी एहतियात कम तो बी कोर वनस लुको ये रोन बी दुकान कर बंद यह बंद एहतियात अमे अलाव यह जरूर कहें। अत मीडिया वाले शुक्र गुजार कि यह पे कि जाय जाय ये पैगाम वातान केस गु हुरम कह पगह प्रॉब्लम गई तो अत मैं शुक्र गुजार बैंक मैनेजर सूदी सह त्रावान बैंकस में तमन नफरन मास्क फारिमपुर बस स्टैंड सहित वाबस्त ट्रांसपोर्टरों तरफ वन आमुत यदि इंतजामिया तरफ ताजरन, ऑटो वालन तो सोमो ड्राइवरन सहित कत कर तिहद कामकार बहाल करने हवाले वत छाड़ना आई, ताहम बस ड्राइवरन हंद मुश्किल दूर करने बापत इंतजामिया तरफ कह कदम तुलना आमुत, यमकिन ड्राइवर मुश्किल मज हन आई। यमो ट्रांसपोर्टरों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत तिहद मुश्किल दूर करने बापत गसन संजीद कदम तुलने युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। यपर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अमे हवाले कत करान वोनमुत बस सर्विस शुरू करने हवाले गौर खोज करने युद्ध जन यमन लूकन हंद मुश्किल दूर करने।
अगर उन्हें की ट्रेड के साथ गाइडलाइन की ठीक है, एसआरटी के साथ गाइडलाइन की ठीक है, मिनी बस के इसके साथ टाटा सोमो के साथ जिसके साथ भी इन्हें गाइडलाइन, ये इलीगल ऑपरेशन सारा चल रहा है बटवाल में। ये कैसे चल रहा है? क्या हमारी गाड़ियां नहीं चल सकती है? क्या उनके ड्राइवर कंडक्टरों को घर नहीं है, उनको फैमिली नहीं है, वो क्यों नहीं चल सकते? हर जगह हमारी डिस्ट्रिक्ट में साउथ हो या नॉर्थ हो, हर जगह हमारी गाड़ियां पहुंचते हैं। मिनी बस रात तक 10 बजे तक चलती है। पहले हमको बुलाना था, मगर बदकिस्मती से मुझे ये समझ नहीं आता है डीसी साहब ने पहले किन किन को बुलाया। ठीक है, उनको भी बुलाना था, हम नहीं उसके खिलाफ है कि उनको क्यों बुलाए। अगर सर हर एक के लिए गाइडलाइन है, ट्रेड के लिए गाइडलाइन है, ट्रेड के साथ टेबल पर बैठ गए, टेबल पर फैसला हो गया, तो हमको क्यों पीछे रखा गया? ये सिर्फ डिसीजन लेना एक ओपन करने का या ना ओपन करने का नहीं है, बट एक वो रीअश्योरेंस होना जरूरी है कि कोई भी सेक्टर आप खोलते हैं वो प्रॉपर्ली ऑपरेट होगा। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में बसेस को भी अप्लाई करने दिया जाएगा और उसके बड़ी मेहनत करके जो रूट्स हैं फाइनलाइज किए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग की गई है, टेस्ट किया गया है और हेल्थ कार्ड्स भी उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उस पर हम वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ जरूरी था कि उनका जो टैरिफ है, जो फेयर है, बस का जो फेयर है वो फिक्स किया जाए, वो फिक्स किया जा रहा है। उसके बाद सीटिंग कैपेसिटी जो है वो फाइनलाइज हुई है, क्योंकि जैसे अगर 30-32 सीटर बस थी उसमें 50% 60% अगर लोग बैठेंगे, अकॉर्डिंगली किराया भी बढ़ाने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उस पर कॉल ले रहा है, लेकिन इसमें जरूरी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक डिप्टी मेयर तो मौजूद काउंसलर शेख इमरानस हवाले ये कई खबर गश्त करान तब तिमो वोनमुत तिमन खिलाफ साजिश करने तो तिमन खबरन मज हकीकत तिमन खबरन मज शेख इमरानस पे इल्जाम आयद करना आए। मैं इतना बोलूँगा कि वहीद साहब और मैं इकट्ठे थे, तब भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। उसकी टेलीफोन डिटेल्स निकाली जाएं। हालांकि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हैं, लेकिन हम अभी कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं देना चाहते हैं। हम बड़े ही इत्मीनान से हैं कि लोग उनको भी जानते हैं, लोग हमको भी जानते हैं। तो टावर लोकेशंस निकाली जाएं। उन्होंने बोला मेरा फ़ोन 5 बजे लिया गया, वो देखा जाए कि उन्होंने फ़ोन कितने फ़ोन किए हैं उसके बाद। हालांकि वो किसी एजेंसी के दफ्तर में गए थे, ACB के, जहां उन्होंने 3 पेज का स्टेटमेंट करप्शन के खिलाफ और फॉर्मर मेयर के खिलाफ दिया और दस्तखत किया। वो भी सामने आ रहा है कल परसों, तो फिर वो खुद ही पता चलेगा कि झूठा कौन है, या क्या पता उसको ब्लैकमेल किया गया हो, कोई कमजोरी पकड़ी गई हो। पुलिस से गुजारिश है ऐसे मामलात इन्वेस्टिगेट कीजिए। कमर वियरना के लूको तरफ ये सड़की हज शहर पर हवाल इंतजामिया मांग कर मुतलिक महकम तरफ सड़की हज शहर पर हवाल कदम तुलना आमुत यथ दौरान सड़क पर तारकोल वहरावन काम शुरू करना आई। अत मौके पे ये मुकामी लूको तरफ खुशी इंतजार करना आव तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने बापत इंतजामिया तरफ संजीदा कदम तुलना। यहाँ जब भी हम कपरन से निकलते थे, चाहे एक डिलीवरी पेशेंट होता था, चाहे कोई बीमार होता था, रास्ते में या उसकी मौत होती थी या डिलीवरी हो जाती थी, सही सलामत कोई भी डोरू तक नहीं पहुंच पाता था या अनंतनाग तक। मैं मुबारकबाद दे दूँगा आज फिर से डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग का और फिदा साहब आपका, जिसने इस मसले को फिर से उजागर किया। हमारे बहुत सारे मसले हैं डोरू के, लेकिन खाड़ा और भटपुरा में एक ब्रिज है जिसमें 40 लाख रुपए का आज ही उन्होंने ये क्या बोलते हैं एस्टिमेट पास करवाया और आने वाले दिनों में रावतपुर तंगमर्गी मज तम सात रिहायशी मकान खाकिस्तर सपदमित ये अचानक अक मकान मज नार जाहिर सपुद। वन रात दौरान रावतपुर तंगमर्गी मज अक रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपुदमुत यम किस जदस मज मजीद अख मकान हेन आव। यदि मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम नार वारदात मज रिहायशी मकान खाकिस्तर सपदमित यथ मज लचवाद रुपयन हंद मालियत सामान नारबुज सपुद। यपर ये मुतासर अयालों तरफ इंतजामिया इमदाद फराहम करने मांग करना आई, तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुद नुकसान जायजे हेन पत यी मुतासर अयाल भरपूर मदद करने युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। बह बज टाइम तो लग शुंगन लोग पावर बंद कर नबर कन गो नार जहर तो अत लग पुड़ बे बनो दो मोटर नबर तो अस लोग न पी ईतस कालस मकान हेतन सरसै नार। यह अंदर कन बाकी मान पलव क्या लाकर जायदाद सह गो सोरे खाकिस्तर मकान गो सोरे हेर बुन मिलिया मेट। वो गुजारिश करान कि गवर्नमेंटस कुन करो कि माली मावनत कि ये गुजार हे हको कि गुजार कर रोज कहें मुजुर बाब मुजुर पेश दोहस मुजुर करान तथ पे कमावान।
देखिए ये कल शाम रात के 12 बजे अराउंड वाक़ा हुआ। ये 2 घर वहाँ पे पूरे जल गए हैं। उसमें ऑलमोस्ट 3 फैमिलीज रह रही थी अभी यहाँ पे। तो हमारी तरफ से हम कर रहे हैं कि हमने जो डैमेज रिपोर्ट है उनका वो भी हम बना रहे हैं, तो उसमें भी उनको रिलीफ मिलेगा अंडर SDRF। तो उसके बाद जो भी हमारी तरफ से मदद हो जाएगा वो उनके लिए करेंगे। तो नाजरीन